Very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new question of the chapter Bank Reconciliation Statement. In the last few videos, we discussed the three practical problems related to the bank reconciliation statement. The first practical problem related to the debit balance plus the cash book. And again, yesterday we discussed a practical problem which are related to the debit balance as per cash book. And we found that the answer should come with a positive balance, that is a credit balance as per passbook. After that, we take a one more practical problem related to the credit balance of the cash book, that is the unfavorable balance. In this situation, we found that the answer would come in the negative balance. So in this situation, we find that the debit balance of the passbook. So after the discussing the debit balance as per the credit balance of the cash book, now today we will move to the debit balance and credit balance of the passbook questions. Today we will solve the two practical problem, in which the first practical problem will be related to the debit balance of the passbook, that is the overdraft balance, and second the credit balance of the passbook, that is a favorable balance, and you know very well. And the very important, a very good news for you, कि CBSE remove the preparation of adjusted cash book from the bank reconciliation statement. So you know very well कि CBSE ने अपना syllabus revised किया है, और with the help of the revised syllabus I want to convey the information कि जैसा कि हम लोग जानते थे कि बैंक reconciliation statement will be prepared by following two way. The first one is without adjusting the cash book balance, and number two with adjusting the cash book balance. यानी कि जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें हम लोग डायरेक्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, बट जो सेकंड सिचुएशन थी, जो सेकंड केस था, वो था आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस. सो उसमें हम लोग पहले कैश बुक प्रिपेयर करते थे एंड देयर आफ्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे. तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस फॉर द सेशन 2020-21, CBSE removed the topic the accounting treatment of and the preparation of bank reconciliation statement with और आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस. यानी कि जो सेकंड केस हमें पढ़ना था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, उसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए आपको प्रोवाइड करना है. सो आई होप टुडे वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 7, दैट इज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमारा ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो इन दिस वीडियो let's we move to the two practical problem. The first practical problem will be related to the debit balance of the passbook, and second one is a credit balance of the passbook. And let's we move to the what is the procedure when we prepare the bank reconciliation statement after adjusting the cash book balance. So let's we take the one example of the debit balance of the passbook. As you can see on your screen as I image the illustration number 12, prepare bank reconciliation statement from the following particulars on June 30, 2016, in which bank statement shows a favorable balance of rupees 9,214. So please take in your mind कि इस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है फेवरेबल बैलेंस 9214 का. तो यू नो वेरी वेल बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट. थिंक अबाउट इट. यस, बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक, और वो कैसा स्टेटमेंट शो करा रही है, फेवरेबल बैलेंस. सो यू नो वेरी वेल कि जब भी बैंक स्टेटमेंट फेवरेबल बैलेंस शो कराती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक. यस, गुड. एंड यू नो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज on 29 June the bank credited the sum of rupees 1650 in error. 29 जून को क्या हुआ, बैंक ने 1650 रुपए एररली सम कर दी है. एरर हुई ना, एरर नंबर 1. दूसरी एरर क्या हुई,
Certain check valued at rupees 4,500 issued before the June 30 were not encashed. कुछ चेक्स थे 4,500 रुपीज के जो कि इशू किए गए कब, जून 30 के पहले, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए और आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रिपेयर कर रहे हो ऑन जून 2013 2016. As well as the third information, a hire purchase payment of rupees 950. Hire purchase payment means the installment. Suppose अगर आपने कोई चीज कर दी बैंक के हेल्प से इंस्टॉलमेंट पे और आपने उसका पेमेंट किया 950, मेड बाय द स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, यानी बैंक ने तो वो पेमेंट कर दिया बट आपको उसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. Point number 4, a check of rupees 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book. यानी चेक था 600 रुपए का जो आपने डिपॉजिट किया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, लेकिन आपने अभी तक उसको बैंक कॉलम में नहीं लिखा है. कहाँ लिखा है आपने उसको? कैश कॉलम में लिख दिया. तो ये तो गड़बड़ हो गई ना. नंबर 5, other check for rupees 8,500 were deposited in June, but checks of for rupees 6,000 only were cleared by the bankers. चेक था कितने का? 8,500 रुपीज का, जिसे आपने जून में डिपॉजिट किया है, लेकिन सिर्फ 6,000 का चेक ही बैंक ने क्लियर किया. एंड यू कैन सी द 5 एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. You can see the format of the bank reconciliation statement on your screen, and let's we move to the solution of this question with the help of you. The first information is prepare bank reconciliation statement from the following particulars on June 30, 2016. तो आप कब बना रहे हो? 30 जून 2016 को बना रहे हो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो आपने पहले नोट डाउन कर दिया डेट. दूसरी बात ये कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9,214. तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यू शोज एज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. एंड यू नो वेरी वेल पासबुक का जो क्रेडिट होता है, फेवरेबल होता है, वो प्लस होगा कि माइनस होगा? तो वो प्लस होगा. यस, कितना रुपए? 9,214 रुपीज. ओके. The first adjustment, that is a bank created a sum of 1615 in error. So you can see that cash book and passbook. पासबुक में हुआ क्या? 1650 रुपए आपने बाई मिस्टेकली क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए. पासबुक का क्रेडिट का मतलब 1650 मतलब प्लस हुआ. ये बात याद रखिएगा. कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस. तो 1650 रुपए आपके प्लस हो गए पासबुक में. आपको चेंज किस में करना है? कैश बुक में नहीं. यही तो मैं समझाना है आपको. आपको अब इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में चेंज किस में करना है? यू कैन चेंज इन द पासबुक. यस, अभी तक हम लोग किसका बैलेंस लेके चल रहे थे? कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे थे, बट अब हमें किसका लेके चल रहे हैं? पासबुक का. तो चेंजेस भी कहाँ होंगी? पासबुक में. आपने गलती से क्रिएट कर दिया पासबुक में, तो आप क्या कर दो? माइनस कर दो, ताकि इधर भी जीरो हो जाए, इधर भी जीरो हो जाए. तो आपने क्या किया? 1650 रुपीज माइनस कर. ये बात ध्यान रखनी है कि आप कौन सा बैलेंस लेके चलो. अभी तक आप कैश बुक लेके चले तो चेंजेस कहाँ करे थे? कैश बुक में. आप किसका बैलेंस लेके चलो? पासबुक में. तो चेंजेस भी किसमें करोगे? पासबुक में. The next one is certain check valued at rupees 4,500 issued before June 30 were not cleared. यानी आपने 4,500 के चेक इशू किए लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए बैंक के थ्रू. बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया. तो कितने का चेक इशू किया था? 4,500 का. आपने माइनस कर दिया कैश बुक में. देखिए पासबुक में तो क्लियर नहीं हुआ है. आपको चेंज किसमें करना है? पासबुक में. क्या करोगे? माइनस कर दोगे 4,000. तो इसको कहाँ जाके लिख दोगे? माइनस में 4,500. आप कहोगे सर आप पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहे हो. ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ पर्टिकुलर्स में लिखना क्या है. यू नो वेरी वेल पर्टिकुलर्स में हमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है. जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी आपकी? बैंक क्रेडिटेड अमाउंट इन एरर. गलती से उसने अमाउंट क्रेडिट कर दिया. और दूसरे का इंफॉर्मेशन क्या है? कि चेक इशू हुआ बट क्लियर नहीं हुआ. चेक issued but not
क्लियर। तो आपने दो इंफॉर्मेशन देख ली। ओके, the point number third, a hire purchase payment of rupees 950 made by standing order was not entered in the cash book। आपने एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया 950 रुपीज का अपने पासबुक में से, क्योंकि हायर परचेस पेमेंट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से पेमेंट आपने किया। आपको चेंज किस में करना है, कैश बुक में, सॉरी पासबुक में। तो ऐसा क्या करो पासबुक में कि चेंज हो जाए, यू नो वेरी वेल। हमें क्या करना होता है चेंज करने के लिए, सर 950 उधर दिख रहा है तो हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 950 रुपीज। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट हमने क्या क्या, प्लस 950 रुपीज, 950 यहाँ लिख देंगे। इंफॉर्मेशन यू नो वेरी वेल, क्या लिखना है, हायर परचेस पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हायर परचेस पेमेंट नॉट recorded. Number 4, what is the number 4? A check of rupees 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of cash book। एक चेक था 600 रुपए का जो आपको मिला, उसको आपने बैंक में जमा भी कर दिया, लेकिन आपने उसको कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया। लिखना कहाँ चाहिए था भैया, हमें लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में, लिखना चाहिए था ना, लिख का दिया कैश कॉलम में। तो चेक मिला, रिसीव हुआ, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, यहाँ तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। आपको चेंज किस में करना है, पासबुक में, तो क्या करोगे, -600 कर दोगे, तभी यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ओके, बेसिकली ये बार बार आपको जो वर्किंग नोट करना पड़ रहा है, इससे आपको कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट याद करने की जरूरत नहीं। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट you can solve any kind of reconciliation problem given in your book and given your paper, so please take it very seriously। so 600 rupees आपने पे किया, बैंक ने डिपॉजिट किया, तो यू नो व्हाट इज द नरेशन, चेक क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। ठीक है, पूरा लिख देना बैंक कॉलम। And next, number 5th, other check for rupees 8,500 were deposited in June, but check of rupees 6,000 only were cleared by the bankers। यानी आपने क्या किया, चेक जमा किया 8,500 रुपीज का बैंक में, तो आपने अपने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, क्लियर। लेकिन क्या बैंक में क्लियर हुआ है, नहीं क्लियर हुआ है। चेंज किस में करना है, शुरू से हम बता रहे हैं, ये पासबुक का क्वेश्चन है, तो चेंज किस में करना है, पासबुक में। 8,500 आपने प्लस कर दिया। इसका नरेशन क्या होगा या पर्टिकुलर्स में डिटेल्स क्या होगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। The most important part of bank reconciliation statement while solving the any practical problem, please take it very seriously। The first one कि क्वेश्चन में कैसा बैलेंस दिया है, पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको हमने प्लस में लिखा, डेबिट बैलेंस दिया होता तो माइनस में लिखता, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि पासबुक में दिया है तो चेंजेस विल बी अप्लाइड इन ऑलवेज इन पासबुक। जब आप इस ट्रिक्स के इस बीआरएस को सॉल्व करोगे इस वर्किंग नोट की हेल्प से, तो प्लीज टेक इट योर माइंड, बहुत ही क्लियरफुली याद रखिएगा कि ऑल द चेंजेस विल अप्लाइड इन द पासबुक, या उस बैलेंस में चेंज करोगे, उस बुक में चेंज करोगे जिसका बैलेंस आप लेके चल रहे हो। ओके, सो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या करते हैं सर, टोटलिंग करते हैं और बैलेंस करते हैं। सो लेट्स डू इट। सो पहले हम प्लस साइड को टोटल कर दें, 9,214 एंड 950 एंड 8,500, तो टोटल आएगा आपका 17,664। Am I right? Yes sir, you are always right, but I have a doubt कि ये अमाउंट 8,500 है कि क्या है। Yes, good। So you can see that कि हमने डेबिट में प्लस में कितना टोटल आया, 17,664
64, 4 6 ये 5 and 6, 9 to 11, 5 16, 1 8 16 17 1 18, 18,664, सॉरी मैंने इस टोटल को यहाँ पे लिख दिया। यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन, टोटल को मैंने लिखा दोनों को सामने सामने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट में कितना, ये प्लस में टोटल आ गया, माइनस में टोटल कितना आ रहा है 1650, 4500, 600, तो टोटल आया 6750। So you can see that कि प्लस बैलेंस इज ग्रेटर देन द माइनस बैलेंस। सो आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। हाउ कैन यू क्रिएट अ डिफरेंस, प्लस में से माइनस को माइनस करो, प्लस वैल्यू में से माइनस को, तो 4 1 11,914, वो भी किस साइड ग्रेटर है, प्लस की वैल्यू ज्यादा है। सो आंसर विल बी 11,914। So you can see that the solution is 11,913, ये भी फेवरेबल आया है। How can you say that कि फेवरेबल आया है, because the plus side is greater than the minus side। तो आप क्या करोगे, डेबिट का अपोजिट क्या है, क्रेडिट का अपोजिट क्या है, डेबिट, और कैश, पासबुक का अपोजिट क्या है, कैश बुक। तो ये आपका आंसर आ गया 11,914 रुपीज। So please take a screenshot of this question solution, as well as you can take the screenshot of the question and solve by himself. Okay, so now we will move to the next question. The next question shown on your screen. So the question number, the illustration number 17. From the following information supplied by the Saurav, prepare his bank reconciliation statement as on 31st December 2015. Number 1, bank overdraft as per passbook 18,700. Number 2, check issued but not presented for payment 6,700. Number 3, check deposited with bank but not collected 11,000. Number 4, check recorded in the cash book but not sent to bank for collection rupees 2,500. Number 5, payment received from customer directly by the bank 3,000. Number 6, bank charges debited in the passbook rupees 150. And और कोई information given है, so we can check it. Yes. Number 7, premium on life insurance policy of Saurabh paid by the bank on standing advice rupees 1,850. Number 8, a bill of rupees 2,000 discounted with the bank in November, dishonored on 31st December 2015, and noting charges paid by the bank rupees 200. So this is a complete question. So इसमें 1 by 1 total 8 adjustment है. So first of all we prepare the format of the bank reconciliation statement and record each and every adjustment in the bank reconciliation statement. So ready to solve this question. So let's start the today's question. So first of all we prepare the format of the bank reconciliation statement. The first information is bank overdraft as per passbook. So it is an unfavorable balance, you know very well. एक unfavorable balance है. So the number 1, bank overdraft balance as per passbook. तो you know very well, passbook का overdraft क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, सर माइनस होगा। कितना रुपीज माइनस होगा, 18,700. नंबर सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यू नो वेरी वेल, जब भी चेक इशूड होता है और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है तो 6,700 इशू किया आपने कैश बुक में से, बट पासबुक में तो प्रेजेंट हुआ नहीं, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चेंज किस में करना है, सर वी टेक द बैलेंस ऑफ द पासबुक, तो चेंज किस में करना है, 6,700 इन द पासबुक। यू कैन सी दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, यस। तो आपने क्या किया, -6,700। तो यू राइट डाउन check issue but not presented. Number 3,
नंबर थर्ड इज चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक आपने डिपॉजिट किया, आपने चेक को क्या किया, डिपॉजिट कितने का चेक था, 11,000 रुपीज का, बट वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, नो सर वो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं। चेंज किस में करना है, पासबुक में, प्लस 11,000। ओके, सो आपने प्लस किया 11,000 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected in bank. Okay, number 4 is check recorded in the cash book but not sent in the bank for collection। यानी आपने चेक कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उसे बैंक ने भेजा ही नहीं कलेक्शन के लिए। कितने का चेक था, 2,500 रुपीज का। आपने चेक क्या कर लिया, 2,500 रुपीज का रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, रिकॉर्ड कलेक्ट हो गया हो हवा में, लेकिन क्या पासबुक में उसको रिकॉर्ड किया गया, नहीं, क्योंकि वो गया ही नहीं एक्चुअली में ना, कलेक्शन ही के लिए नहीं गया। 2,500 आप यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। चेंज हमेशा किस में करना है, पासबुक में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्लीज टेक इट योर माइंड, टेक इट इन योर माइंड दैट चेंजेस विल बी अप्लाइड ऑलवेज इन द पासबुक व्हेन वी टेक द बैलेंस ऑफ द पासबुक, आइदर इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। 2,500 आपने प्लस कर दिया। चेक not sent to bank for collection. Okay, number 5th, payment received from customer directly by the bank। एक पेमेंट था कस्टमर के थ्रू, आपको वो डायरेक्टली मिल गया, डायरेक्टली मतलब आपके बैंक अकाउंट में आ गया। कितने का पेमेंट था, 3,000 रुपीज का, डायरेक्टली आ गया आपके बैंक अकाउंट में। ठीक, चेंज किस कैश बुक में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो आप पासबुक में से उसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे ताकि इक्वल हो जाए। 3,000 को आपने क्या किया, माइनस कर दिया। चेक सॉरी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, 7, 8 पे हम लोग मूव करते हैं। नंबर 6 इज बैंक चार्जेस इज डेबिटेड इन द पासबुक। यू नो बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी कट करता है आपके बैंक अकाउंट से। कितना चार्जेस उसने कट किया है, 150 रुपीज उसने आपके अकाउंट से कट कर लिया, अकाउंट से काट लिया 150 रुपए। सो चेंजेस किस में करने हैं सर, चेंजेस हमें किस में करने हैं, पासबुक में। सो क्या किया जाए, 150 रुपीज ऐड कर। ओके, क्या नरेशन होगा, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट number 7, number 7 says that premium on life policy of Saurabh paid by bank on standing advice। आपकी लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम था जिसे किसने पे कर दिया, आपके बैंक ने पे कर दिया आपके कहने पे। यानी आप अपने बैंक से कहा था कि 1850 रुपए एवरी ईयर या एवरी मंथ और एवरी क्वार्टरली एवरी हाफ ईयरली आप पे कर दो 1,850, तो उसने आपके उठा अकाउंट से पे कर दिया जब भी ड्यू हुआ। बट यू हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ द लाइफ पॉलिसी। आपने कहा जरूर है बट डेट का पता नहीं है कि ड्यू कब है, कभी कभी पहले पे हो जाता है कभी बाद में पे हो जाता है, तो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंट। ये इन्फॉर्मेशन तब आपको मिलती है जब आप पासबुक प्रिंट कराते हो। तो बेसिकली 1,850 रुपीज का पेमेंट आपने लाइफ पॉलिसी का पे किया है 1850 रुपए का, तो आपके पासबुक में से वो वैल्यू क्या हो गई, डिडक्ट हो गई। कैश बुक में कोई इफेक्ट उसका पड़ा नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यू नो वेरी वेल, चेंज किस में करना है, पासबुक में चेंज करना है। तो पासबुक में चेंज करने के लिए आपको क्या करोगे, प्लस 1,850 कर दोगे ताकि यहाँ पे भी जीरो हो जाए, यहाँ पे भी जीरो हो जाए। तो आपने बेसिकली क्या किया, प्लस 1,850 रुपीज किया। सो राइट डाउन
1850 प्लस साइड में, एंड टेक द नरेशन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. Next one, number 8 and last, a bill of for rupees 2000 discounted with the bank in November on December 31st 2005 and noting charges paid by the bank 200. एक बिल था 2000 रुपीज का जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था नवंबर में, यानी बैंक को बिल देकर 2000 रुपए ले लिया था. वो बिल डिसऑनर्ड हो गया 31 दिसंबर को. अब आप बताओ गलती किसकी है? आपने बिल दिया तो आपके ऊपर पड़ेगा ना. तो बैंक आपसे 2000 बिल का भी पैसा लेगा और 200 नोटिंग चार्जेस का भी पैसा लेगा, क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस भी पे किया है. ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है? जब कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल को की वैलिडेशन के लिए, यानी कि उसके सर्टिफिकेशन के लिए कि बिल डिसऑनर्ड हो गया है, उसके लिए बैंक क्या करता है, या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन या पर्सन उसकी नोटरी कराता है, यानी सर्टिफाई करता है कि इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं हुआ. और फॉर मोर डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी when we move to the next chapter, that is bills of exchange, तो आप इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो जाएगी. सो बेसिकली ये जानिए कि जब कोई बिल डिस्काउंट, जब कोई बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड मतलब ड्यू डेट के दिन उसका पेमेंट नहीं होता है, तो बेसिकली जिसके पास वो बिल होता है, द होल्डर ऑफ द बिल, जैसे यहाँ पे कौन था? बैंक था, तो उसे नोटरी करानी पड़ती है. वो नोटरी का पैसा किससे लिया जाता है? जो भी आपको वो बिल दिया होगा. जैसे बैंक को वो बिल किसने दिया है? मैंने दिया है, मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है. ओके, तो आपके बैंक अकाउंट से काट लेगा. तो उसने क्या काटा? पहले तो बिल डिसऑनर हो गया, उसका पैसा काटा आपके अकाउंट से. दूसरा 200 रुपीज नोटरी चार्ज का काट लिया. तो टोटलिटी में देखिए, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पासबुक में 2200 रुपीज कट गए. तो चेंजेस कहाँ करनी है? तो चेंजेस करनी है हमें पासबुक में. क्या करें पासबुक में? प्लस कर दो 2200, कलर कर दिया. ओके, यहां क्या लिखोगे नरेशन में? सर आई नो बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक. बिल डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? बैंक ने. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल, आपको क्या करना होता है? टोटलिंग करना पड़ता है. टोटलिंग करना पड़ेगा ना. विदाउट टोटलिंग आप कैसे क्वेश्चन का आंसर जान पाओगे? Okay, so now we will move to the totaling part and balancing part of this question. So now totaling करते हैं. पहले प्लस साइड को हम लोग टोटल करते हैं. प्लस साइड में है 11,000, 2,500, 150, 1850 and 2,200. So when we are totaling about these figure, 11,000, 2,500, 150, 1850 एंड 2200, तो उसको टोटल करने पे आएगा पूरा 28,400. दो यस, वेट अ मिनट, इसका टोटल करने पे इतना नहीं आएगा. इसका टोटल करने पे आएगा आपका 18, 11, 8, 2, 4, 4.5, 4.5 और आपका 2200 क्या आएगा? 17,700 प्लस साइड का टोटल करने पे आ रहा है 17,700. और जब हम माइनस साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 18,700, 6,700 एंड 3,000. इसका पूरा टोटल करने पे आएगा 28,400. ओके, सो वी फाइंड दैट कि माइनस साइड इज ग्रेटर देन द प्लस साइड. आप देख रहे हो कि माइनस साइड ग्रेटर है, यानी माइनस साइड आ रहा है 18,400, तो प्लस साइड भी 28,400 आना चाहिए. रिकॉन्साइल करना है, तो यू कैन फाइंड दैट कि आंसर क्या आ रहा है? माइनस साइड ग्रेटर आ रहा है. ओके, और डेबिट साइड कितना आ रहा है? 17,700. तो 17,700 प्लस साइड आ रहा है, माइनस साइड आ रहा है 28,400. तो डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा? 10,700. तो बैलेंस कितना है? 10,700. वो भी किस साइड आया? प्लस साइड आया. क्यों? क्योंकि माइनस साइड इज ग्रेटर देन द. सो ये आंसर माइनस में आया है, क्योंकि माइनस साइड आपका ज्यादा है, प्लस साइड कम है. तो यू नो वेरी वेल, आंसर माइनस में आया है
और आप बैलेंस भी क्या लेके चले थे, माइनस। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया तो कैश बुक का भी कैसा बैलेंस आया होगा, ओवरड्राफ्ट ही आया होगा, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। We find that the overdraft balance of the passbook. So please take a screenshot of this question. So I hope today we solved two important practical problems related to the bank reconciliation statement. Apart from this, you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot. In the next video, we will come to deal with the new chapter of the accountancy class 11. So thank you. Thanks a lot.